Good morning, everyone. Dilip Uncle, I think it's the time. So, can we start? Who is from a Nexus of Good? Has anyone joined from Nexus of Good? Yes, good morning, friends. It is 11 o'clock and we must begin. Time and tide waits for none. I am sure our other friends will be joining parallelly, but let me begin this wonderful occasion. Friends, IC Center for Governance has initiated this platform about during the COVID period, wherein we thought that there are a good number of officers who have been doing something exemplarily good in the society, and their work is reaching out to the citizens in a very unusual way by tapping into the resources that people have, the hidden resources. I would say that the uh, social resources which are untapped, and some of the officers have been tapping them, using their position in a very positive manner, and creating good amount of changes in the society. So today is the 14th such webinar. That means that already 13 such scintillating officers we have brought onto the platform, and we have heard them. And the purpose is to create some kind of inspiration among the people who can probably uh, parallelly create something in their own situations, in their own places. And especially now when the changes are in the air, for last few years we have been watching, we have been seeing, and there is a seriousness in government as well to convert, to transform the people into karma yogis, which would mean that the roles are more important than the rules. And under such situation, the extension takes place of the position that the officer holds, and using the position but going beyond his or her own uh, work, and creating something magical. So today is the 14th such webinar, and I'll be introducing the speaker a little while later. But before that, let me also tell you that the Mr. Anil Swarup, who has initiated this Nexus of Good, um, picking up his thoughts, saying that the good people normally remain isolated as an island of excellence, and they need to connect uh, as much as, or maybe better than, the bad people immediately connecting and creating their own nexus. So today we have got the National Commission for Good Governance, as well as the Nexus of Good Foundation. And now there are, and in future, I think we will keep connecting so that we can create a larger and larger pool of people who get inspired and who are or who are inspiring others. So I welcome not only the members of ICCFG and the invitees of through ICCFG, but also the members from NCCG, NCGG, and Nexus of Good Foundation. So to tell you a little bit more about ICCFG, that ICCFG was formed in 2003. That means we have now completed 20 years, and the whole focus was on naitikta, on the um, uh, creating or bringing in the governance the naitik way of working, and that was found out as the need of the hour. And from 2005 onwards, ICCFG has been offering through DOPT training programs to the IS officers, the IFS officers, the IPS officers, almost all AIS officers now, once or twice a year. And
last 20 odd years, we have been having, probably we would have offered the training for more than 600 officers and thousands of the officers of the various government. So in this connection, we thought that we must expand. And while we have been various publications happening, we have been having in Delhi talks from the eminent speakers, and along with that, making use of this new platform, which was given to us by COVID, that we have initiated this Alliance of Change Makers. And you all are somewhere or the other connected with one of these three organizations. And we would like to request all of you to also bring your own friends, like-minded people onto this platform. Periodically, we have these webinars happening. And today, as I said, is the 14th one. Let me request the Mr. R.K. Singh, as well as Mr. A.P. Singh, whosoever comes first. Maybe let's say A.P. Singh Saab, are you there? Professor A.P. Singh? Ashutosh ji. I am here, sir. Yeah, so can you, in a couple of minutes, can you also tell us something about the NCGG? Definitely. And then we'll request the Mr. R.K. Singh to talk about Nexus of Good. Yeah. Sir, first of all, on behalf of NCGG, I welcome Sri Pramod Kumar sir, Chairman, IC Center for Good Governance, Sri Dilip Patel sir, Santi Narayan sir from the IC Center for Good Governance, participants of the 14th online webinar under the banner of Alliance of Change Makers in collaboration of National Center for Good Governance, and most importantly, speaker of the two-day webinar, Sri Siddharth Tripathi ji. In next 2 minutes, I have to say something about NCGG. NC has been set up in 2014 by National Center for Good Governance as an FX-level autonomous institution under the auspices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Governing body of NCG headed by the Cabinet Secretary, and the Management Committee is headed by the Secretary DRPG. We have head office at New Delhi and campus at Mussoorie also, branch office campus at Mussoorie. Now I have to say something about the activities of the NCGG and what type of milestone we have already achieved during last 10 years, 9 years. This is one of the institute in the country trained more than 2,500 civil servants of Bangladesh since 2014, comprising of Deputy Commissioner of Bangladesh, Additional Deputy Commissioner of Bangladesh, SDM, and Senior Assistant Commissioner of Bangladesh. This is one of the institute of the country trained more than 1,000 civil servants of Maldives also. This is also one of the institute of the country trained. You're muted, sir. Please unmute yourself. We can't hear you. This is also one of the institute of the country trained 1,000 civil servant of Maldives. This is also one of the institute of the country trained more than 90 permanent and deputy permanent secretary of Gambia, one of the countries of the African region. In total, we have trained 4,500 civil servants from the 15 countries, that is Bangladesh, Kenya, Tanzania, Tunisia, Seychelles, Sri Lanka, Afghanistan, Laos, Maldives, Vietnam, Bhutan, Myanmar, Cambodia, and among others. As well as domestic program is concerned, we are also providing a training to the civil servant of Jammu and Kashmir and the Arunachal Pradesh. Till date, we have trained about 500 civil servants from both states. This year, we are also going to start some of the interesting projects on the governance and public policy. So this is something about the NCGG, sir. So presently, our Director General is the B. Srinivas, sir, Secretary DRPG, and the Secretary of the Department of
pension and pensional welfare. This is something about the NCT, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. And so I think we are expanding our reach to all your members, and please connect to them also so that we can get connected. And I am also, sir, I have to add some one point. I am also very much thankful to the IC Center for Good Governance for providing the input to the Bangladesh civil servant on ethics in governance, sir. Yes, we would love to get connected Yes, sir. further and further with you. Yes, sir. Yes, sir. So now may I request Mr. AP Singh, Mr. RK Singh, both are Singhs, who is the trustee secretary of the Nexus of Good Nexus of Good Foundation. Singh Saab? I think he's not joined. He's somewhere in remote location. So He Mr. is on Verma, Mr. Verma or Vidhi Chopra, is anybody here so they can introduce? Yeah, please. Or maybe we can, if they have not, we can do it in We the. will proceed further. But let me welcome the members who have come through Nexus of Good, because we value very much the thought that the good people must get together and expand the whole scope of taking the good to the people. Now coming to the this morning's session, the important aspect to be observed among all these nexus of all these alliance of change makers that we have been bringing on this platform is that these are the people who have done exemplary work in the field. Basically, we feel that that there are a lot of untapped social capital, untapped. The people at large have got their own mind, is one of the resources. Other is a human muscle power, is another resource. And then the third one is the wealth of the ordinary people. And all these three things, they don't come under any government controls. But then these are the ones which, if the government officers are able to judiciously and very interesting manner, if they're able to tap into this, then I think we have got a huge wealth, the social capital, which is untapped and which can be tapped, and sort of a magical changes can be brought in. And that is something like that has been done by Mr. Tripathi. Siddharth Tripathi is the year 99 batch IFS officer. He has he's an MTech in civil engineering from IIT Roorkee, and various positions he has held. I'm not going to go into the detail of that because that doesn't matter here today. But while remaining in the gubernatorial services and responsibilities, he invested his Sundays into these villages. We would like to learn from him what is it that drove him to sacrifice his Sundays and go to the villages and work with those villages and inspire them and tap their social capital. 2007, I believe he had his first experiment wherein he made a village poverty-free. And then in 2017, 2 more villages have been added. So I would like Siddharth Tripathi ji to take over. Please let us know and let all of us hear the magic that he has been creating. He believes that this is scalable and therefore it is even more interesting. Over to you, sir. Siddharth ji. You are muted, sir. Mr. Tripathi, you are muted. You have to unmute yourself. Now, am I audible, sir? Yes, you are very much audible now. Yeah. And the presentation is visible too? Yes. Okay, sir. Respected sirs, madams, colleagues, and friends, good morning to each one of you. Friends, what I'm going to share today with you all is not something that I learned from a book, but rather something that is the result of my experiments of the past 22 years in Jharkhand. So would like your attention in the next 40-45 minutes.
I have divided this topic in 4 parts. The first part, I will be dealing with the present scenario. Next comes how I understood the problem, and then quest for a solution, and finally, how to scale it up. Let us devote few minutes on the present realities in rural India. I know, very experienced people are there today on this webinar, but even then I will take your time. Diminishing values in the society. You will see that each and every parameter that we are discussing, we are going down south. In day-to-day life of the people, values are going down. Just to put this point home, when I visit rural areas and suppose there is a mother, अपनी सोसाइटी में माँ का हमने बहुत बड़ा स्थान रखा है, लेकिन आज गांव की स्थिति में भी अगर माँ के 2 बच्चे हैं और एक कहीं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा रहा है और दूसरा कहीं आरटीओ में क्लर्क है, तो शायद दूसरे की ज्यादा पूछ होने लगी है घर में। हमने यहां तक अपने जीवन मूल्यों में कमी ला दी है। स्पिरिट ऑफ सेल्फ बिफोर द नेशन एंड अदर फेलो सिटीजन्स, लेस सेड द बेटर। हमने चेटूट कोड पढ़ा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. The safety, honor and welfare of the men you command comes next. Your own safety, honor and welfare comes last always and every time. कहीं हमने इसे रिवर्स तो नहीं कर दिया अपनी लाइफ में? करप्शन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, खास करके जो ग्राउंड स्तर पे है, ब्लॉक के नीचे कोई कमी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है. Deteriorating law and order in the society, different dimensions are getting added up. Insensitive and costly justice delivery system. अगर हम में से किसी को आज के दिन आदरणीय सिंघवी जी या सिबल जी को रखना हो, तो probably whole of our life will go in engaging him for just one day. Drying rivers, rivulets, streams and nalas. किसी का ध्यान ही नहीं है. I come from a plateau state. हमारे यहाँ रेन फेड रिवर्स हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स नहीं है, और वही उस गांव की गंगा है, उसी से उनकी खेती होती है. एंड द फैक्ट इज दैट in most of the cases, these rivers and rivulets that were perennial around 50 years back are now seasonal, maybe drying just after the monsoon in many of the cases, depleting groundwater and its quality, degrading forests and loss of biodiversity. बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है, either in government or in NGOs. डॉलर और यूरो नेचर की करेंसी नहीं है, नेचर की एक ही करेंसी है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, क्लीनलीनेस एंड स्वच्छता. हमारे गांव में पिछले 300, 400, 500 साल से झाड़ू नहीं लगा. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस. हवा और पानी, बारिश में ही गांव की सफाई हो रही है. हम अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन गांव की सफाई नहीं करते हैं, चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया. एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी एंड वैल्यू लेस प्राइमरी एजुकेशन. हमने एक्सेस तो सर्व शिक्षा अभियान में डाल दिया, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं देखने की चीज है. हाईली इनएडिक्वेट एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली हेल्थ केयर. मैं प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, हार्ट और किडनी की बात नहीं कर रहा हूं. मैं प्राइमरी जो वाटर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, उनकी मैं बात कर रहा हूं. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. जब पानी की ही इतनी समस्या, अभी हम कर तो रहे हैं हर घर जल में, लेकिन जब नीचे पानी ही नहीं होगा तो शायद वो भी एक अलग ही तरह की समस्या होगी. एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी फॉर 3 क्रॉप्स. आई कम फ्रॉम ए स्टेट जिसको एक फसला कहा जाता है आज 75 साल बाद. वहां एवरेज रेनफॉल 1200 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर का है, लेकिन आज भी पैडी जो एक क्रॉप ग्रो की जाती है, अगर 2 से 3 वीक का ड्राई स्पेल हो तो इट गोज फॉर ए टॉस. 30 to 75% प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है. इस साल भी पहले अल्टरनेट हो रहा था, अभी ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम ऑफ द ब्लॉक्स आर फेसिंग ड्राउट. 183 blocks are facing drought this year. Nutrition value of crops, vegetables and fruits. एक अभी स्टडी हुई है, हमारे पास डेटा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे भी ये डेटा अवेलेबल है. और इस वेबिनार में भी मैंने एक साहब को जोड़ा है जो एम्स के डॉक्टर साहब हैं,
डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास, ही विल सेकंड इट, कि पिछले लगभग 70 सालों में हमारी फसलों का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू 70% से 99% तक कम हुई है। ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ नेटिव वेराइटीज, केमिकल एग्रीकल्चर, जहर खा रहे हैं, एडल्ट्रेशन इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन। अभी तक हमने दूध और मिठाइयों की बात की थी, अब हम दवाओं में एडल्ट्रेशन पे आ गए हैं। लैक ऑफ मीन्स ऑफ रोजी रोटी फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें डोल्स नहीं चाहिए, मैंने ये समझा है। एट द बेस्ट इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट चाहिए, कल हम वापस कर देंगे। खास करके मैं एक्सट्रीमली पुअर की तरफ से बोल रहा हूं। डिस्प्यूट्स इन द विलेज, मैंने आज तक नहीं देखा है कि गांव के जो झगड़े हैं उनको थाना या कोर्ट सुलझा दे। हमारी पुरानी जो न्याय व्यवस्था थी, एवं झारखंड में जो आदिवासी न्याय व्यवस्था है, मैंने उसका अध्ययन किया है, वो कई गुना बेहतर थी आज की जो मैकाले की न्याय व्यवस्था है। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ श्रमदान, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिवीजन ऑन कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, चाइल्ड लेबर, सुपरस्टिशंस। यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही छोड़ें, हमने समाज को ऐसा बांट के रख दिया है। कंजम्पशन ऑफ लिकर, आई कम फ्रॉम यूपी एंड आई वर्क इन झारखंड। झारखंड की ये समस्या बोलेंगे तो बहुत सारे लोग इसको कहेंगे वो तो ट्राइबल बेल्ट का है, तो वहां तो होता ही हो। नो, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड इन माय विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड गोरखपुर इन यूपी, कोई भी मेरे गांव में उस समय शराब नहीं पीता था। इक्का दुक्का अगर कोई लोग पीते थे तो उनको बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है। आज शायद ही कोई बचा हो, और मेरे उम्र के लगभग 30-40% लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे, दे आर नो मोर, बिकॉज दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम लिकर टू ड्रग्स, गांजा एंड अदर थिंग्स। इट हैज डिस्ट्रॉयड फैमिलीज। टोबैको, डावरी, जेंडर इनइक्वालिटी, अर्ली मैरिज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। जब नीचे जाते हैं तभी पता चलता है फैमिली। हमारी जो अपनी व्यवस्था थी आयुर्वेद की, फिटनेस को प्रधानता दें, वेलनेस को प्रधानता दें, मेंटल वेलबींग, कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, फास्टिंग, लंघनम परम औषधम। कहीं ये चीज आज के मॉडर्न एजुकेशन में मुझे भी कभी नहीं पढ़ाया गया। मैंने पढ़ाई के बाद जब अपने कार्डर में आया, तब जब इन चीजों में इंटरेस्ट हुआ, तब इन चीजों को समझा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। बट दे आर ऑल मिसिंग इन आवर डेली डिस्कोर्स इन द कंट्री। Friends, if there is a problem and I'm not part of the solution, then I'm part of the problem. Sometime in 2000 I read this and I like this quote. अपने आप को पूछना है, सिस्टम को खुद को पूछना है कि कहीं हम खुद प्रॉब्लम तो नहीं है। जब इन समस्याओं के बारे में मैं बात करता था शुरुआती दिनों में, my professional age is that of Jharkhand. I joined the state in 2000, last week of December. Got a state called Chaibasa, West Singhbhum, for my district training. और पहली बार मैंने ऐसी गरीबी देखी जिसको शायद सब सहारन अफ्रीका के तौर पे किताबों में पढ़ा था। 3-3 दिन से चूल्हे पुते हुए हैं और घर में आधा किलो चावल भी नहीं है। बच्चा मलेरिया से परेशान है। गांव में 5-5 लोग एक वीक में मलेरिया से मर जा रहे हैं। When asked colleagues and seniors, frankly, I'm speaking about all cadres across, not only IFS, but rather during my attachment, everyone. तो जनरल ये होता था कि मतलब कहीं से कोई सलूशन नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि ठीक है, ऐसे ही चलता है, और ज्यादातर यही कहते थे कि यार गांधी और हजारे कम होते हैं। Started visiting for a solution. मैं थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड दूंगा। Despite poverty elevation being national focus right from first 5-year plan, आज भी 6.5 लाख गांव में से देश में मुश्किल से 5 या 10 ही सस्टेनेबली पॉवर्टी फ्री है। And not even one village is holistically poverty free due to government intervention. This is something for us to mull upon. And when I say poverty free, I don't mean कि palatial house हो लोगों के पास, BMW हो या even Maruti हो. No. What I mean is basic facility of value-focused primary education. I'm not talking about secondary and college education. Primary education, good primary health care, not about non-communicable diseases. Sufficient water for irrigating 3 crops, safe water to drink, addiction-free, dispute-free, malnutrition-free, clean and green village. A village where there is no gender
inequality, which is free from early marriages of girl child especially, no child labor, and above all, confidence and capability to meet any eventuality in future. कोई ट्रेनिंग नहीं है इन चीजों पे. Forget being poverty free. In fact, we are going down on the essential parameters of sustainability every year. आगे क्या होगा डर लगता है. And what are they? Quality and quantity of surface water. आप अर्बन एरिया में आप देखें क्या किया हमने अपने वाटरशेड का पानी खत्म कर दिया, पी लिया. अब हम बाहर से बड़े बड़े कैचमेंट बना रहे हैं, बड़े बड़े जलाशय बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं और वहां से पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. इज इट द सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर को तो हमने खत्म ही कर दिया, इतना पोल्यूट कर दिया उन्हें. क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट. मैंने पहले ही कहा कि बायोडाइवर्सिटी इज द ओनली करेंसी ऑफ नेचर. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, लेस सेड द बेटर. हमने अपनी सॉइल के साथ जो किया है, और आज के दिन एवरेज कंट्री का जो सॉइल लॉस है वो अराउंड 25 to 35 टन पर ईयर पर हेक्टेयर है. बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन. फ्रेंड्स, a villager in a village lives his life holistically. His kid needs good primary education, sick mother needs better health care, his fields need good irrigation facility, and his family needs clean drinking water. He himself needs better livelihood opportunities. But in our system, there are different people, departments, and sectors to do these works. And unfortunately, I repeat, unfortunately, there is no coordination worth its name between the sectors. There is nobody in the district who can name all the schemes running in the district. Forget about the coordination. So what, in short, I would like to share with you is, sectoral approach in government doesn't develop the sensitivity to understand the complex issue of poverty. हर आदमी अपनी एंगल से पॉवर्टी को देखने की कोशिश कर रहा है. इफ आई एम आस्क्ड, आई कैन एलेबोरेट, एंड एनजीओस टू आर नो वे बेटर. इवन द बेस्ट ऑफ एनजीओज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रन ऑफ द मिल, अदरवाइज तो 31 लाख है. द बेस्ट एनजीओ जो आईएनआरएम में काम करते हैं, मैंने उनको देखा अपने राज्य में, वो ड्रेनेज लाइन में सोलर पावर्ड एलआई लगा रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन लगा रहे हैं. जब मैं उनसे मिला, वो हमारे पास आए थे, मैंने उनसे कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप पेरेनियल करेंगे इस नाले को, अगर आप इस नाले को भी खत्म कर लिए, टाण का पानी पी लिया, दोन का पानी पी लिया, आई एम यूजिंग झारखंड रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज, अब आप नाले में भी 10 फीट नीचे जो पानी बह रहा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे. फॉर्चुनेटली दे वर गुड पीपल, उनको फॉरेन फंडिंग थी, उन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया. बट दिस इज व्हाट हैपन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द इकोलॉजी, और विलेज सोसाइटी को नहीं समझते हैं और जस्ट प्रोजेक्ट मोड में काम करते हैं. Friends, poverty is understood by our system like the proverbial elephant. एजुकेशन वाला उस एजुकेशन के एंगल से, हेल्थ वाला हेल्थ के एंगल से, लाइवलीहुड वाला लाइवलीहुड के एंगल से, फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट के एंगल से, हर व्यक्ति जो जिसकी पढ़ाई है या जहां काम कर रहा है उसी एंगल से. इनफैक्ट कभी कभार तो हम लोग कई डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो जब जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं उसी एंगल से देखते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि पूरी पिक्चर क्या है. So with no solution in sight and complete failure, I started visiting same village at every weekend, as Patel sir just told, in 2003. Before that, I was trying to understand this problem, कि समस्या का कान कहाँ है, पकड़े. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ से शुरू किया जाए. So I went to the people to listen them about their life, their struggles, their stories. And after 10 to 15 visits, their stories became meaningful. And I would like your attention now. When they told what were the cause of their present situation, several things emerged. नशा, झगड़े, कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसे और जानवर बिक जा रहे हैं, उनके जमीन बंधक हो जा रही है, चाइल्ड लेबर, नो लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑल दिस थिंग्स व्हेन दे टोल्ड, मैंने आपके लिए इस तरीके से रख लिया है ताकि आप देख सकें कि कितने तरीके हैं. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, जस्ट इंडिकेटिव. 10-15 और जुड़ जाएंगे, बट दे आर नॉट मोर देन 40. आई हैव ट्राइड टू accommodate 23 ऑफ देम हियर. एंड आई कॉल इट I1, इनोवेशन नंबर 1. मुझे लगभग 6-7 महीने लगे इन चीजों को समझने में. और अच्छी बात यह थी कि आई वाज नॉट हैविंग फंड. अगर फंड होता तो शायद मुझे आज तक नहीं समझ में आता. सिंस आई वाज नॉट हैविंग फंड, आई वाज गोइंग एंड इंटरेक्टिंग विद देम, सो आई कुड नो दिस. I was thinking on a different line.
एंड व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या चीज हम खुद कर सकते हैं, तो आई फाउंड कि इसमें जो हमने ब्लू मार्क किया है, ये सारी चीजें हैं जो सरकार या बाहरी मदद से संभव ही नहीं है, ये सिर्फ गांव कर सकता है, समाज कर सकता है। और इसी को मैंने अलग तरीके से लिख दिया है कॉलम ए और कॉलम बी में। आप खुद देखें, सरकार या बाहरी मदद से सिर्फ कुछ ही चीजें हो सकती हैं, रोड, बिजली, इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, अगर आप पाइप वाटर की बात करते हैं, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी नहीं सरकार रोक सकती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे सकती है। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर गरीब है, किसी को कुआं दे दिया जाए, किसी को लाइवलीहुड शेड दे दिया जाए, बकरी शेड, मुर्गी शेड वगैरह वगैरह। क्रेडिट सपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बिल्डिंग बना सकते हैं, रेशन एंड पेंशन। बियॉन्ड दिस आई डोंट थिंक एनीथिंग गवर्नमेंट कैन डू इन द विलेजेस। और सोसाइटी क्या कर सकती है, दैट यू कैन सी इन कॉलम ए, राइट फ्रॉम लिकर फ्री, क्लीन विलेज, वीकली ग्राम सभा, यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल फैमिली, डिस्प्यूट फ्री विलेज, अर्ली मैरिज फ्री, सुपरस्टिशन, नो चाइल्ड लेबर, जीरो ड्रॉप आउट, केमिकल एग्रीकल्चर फ्री, जेंडर इश्यूज, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है कि गांव में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन खत्म कर दे, लोगों को जागरूक करना होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, डिप्लीटिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, डावरी। आई डील विथ ईच वन ऑफ देम। So Martha क्या न करता, I was not having any fund for any of these activities. I was posted as a DFO in a district called Kodarma. So I started from column A, all the issues. And with regular visits, the confidence in the people grew and the magic began. ये मेरे लिए भी एक learning थी. And to my surprise also, this village did Shramadhan for 5 months on a trot. इसके पहले मुझे 2-3 गांव में असफलता भी मिली थी, मैं उन चीजों पे अभी नहीं आ रहा हूं। एंड इट वाज अ ह्यूज लर्निंग, डिफरेंट रीजन से मुझे उनको अबेंडन करना पड़ा। एंड इन दिस विलेज इन 2006-7 वी गॉट सक्सेस। एंड यू नो द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल डेट, ये सिर्फ 40 घर का एक ट्राइबल विलेज था जहां मात्र 40,000 का अन्न होता था, आज 30 लाख रुपए का अन्न और सब्जी वो बेचते हैं। वी डिड द क्लीनलीनेस। पहली बार हमको समझ में आया कि कैसे लेंटना कैमरा, जिसको पुटुस बोलते हैं झारखंड में बोलचाल की भाषा में, एक वीड है, कैसे इसको खत्म करें। यहाँ पे पहले एक क्रॉप होती थी, दूसरी क्रॉप पहली बार ये ब्रीडर सीड से गेहूं लगाया हुआ। आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, हम तो सर्टिफाइड सीड का नाम सुने थे, बट इन द कोर्स ऑफ माई लर्निंग आई केम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। वाड़ी में कैसे हम काम करें, कैसे न्यूट्रिशन गार्डन पे काम करें, कैसे सोलर लैंटर्न, उस समय जरेडा में टाटा बीपीएल की लाइट थी, उस समय किरोसिन के लिए उनका वेज लॉस और किरोसिन का मूल्य साल का 1100 रुपए कैलकुलेट हुआ था। हमने कहा कि ये मात्र 480 रुपए की सब्सिडी की लाइट है, वैसे इस लाइट की कीमत लगभग 4,000 रुपए थी, क्या आप लेंगे? दे गॉट रेडी। और 48,000 रुपए उनका जमा हुआ। हमारे पास कुछ फंड था, हमने वो फंड दे दिया जरेडा को और उनके 48,000 से एक ग्राम कोष बना दिया। दे वर कंप्लीटली अंडर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल महाजन। 3 चीजों के लिए महाजन के पास कर्ज लेते थे और कर्ज का रेट क्या होता था, 100 रुपए का 10% महीने का। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इंडस्ट्री या कोई म्यूचुअल फंड भी इतना प्रॉफिट देता होगा। 100 रुपए का 120 रुपए साल का सिर्फ इंटरेस्ट। और ऐसा लगा उस दिन की सबकी जेब में 48,000 रुपए हैं। विलेज गांव में बिजली उस समय नहीं थी, अब तो ग्रिड पावर भी जा चुकी है। तो उस समय की ये फोटोग्राफ्स हैं। एक भी पैसा हम लोगों ने बाहर से नहीं लिया। इस गांव का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन गांव के अपने प्रयास से, गांव के अपने श्रम से और गांव के अपने पैसे से हुआ है। ये चबूतरा भी पत्थर, बालू, मात्र 9,000 रुपए का सीमेंट, जो 48,000 रुपए जमा हुआ था इनके ग्राम कोष में लाइट्स का, सोलर लाइट्स का, उससे लिया गया है। इसी तरीके से जो सोलर स्ट्रीट लाइट आपको दिख रही है, तमाम चीजें श्रमदान से वहां की गई। इवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी एक नई तकनीक हमारे एक रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने किया था, उसको आई फाइंड इट रियली इनोवेटिव। रक्षाबंधन करते हैं, उसकी हर साल वर्षगांठ मनाते हैं, और उसी जंगल को जिसको काटते थे, उसी जंगल को अब पत्ते भी नहीं चुनते, वहां पे सूखी लकड़ियां भी नहीं ले आते हैं। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसी को श्याम सुंदर पालीवाल ने अपने यहाँ लागू किया, कहीं पढ़ करके, राजस्थान राजसमंद पिपलांत्री मॉडल। ये पूरा का पूरा चेतना भवन गांव वालों के श्रम से, उनके पैसे से बना है। आई हैव नेवर सीन अ कम्युनिटी हॉल दिस ब्यूटीफुल एनीवेयर इन द कंट्री। और चूंकि वो भूख के शिकार थे, तो यहाँ पहला मैंने लाइफ में ग्रेन बैंक भी यहीं बना था। 5 क्विंटल उनका चावल, 20 क्विंटल हम लोगों ने दिया,
25 क्विंटल से, जिसको 2 विडो मैनेज करती थी, लेकिन 2 ही साल में उनकी भूख की समस्या हल हो गई और सारा चावल बेच करके उनके ग्राम कोष में डाल दिया गया। इट इज अ प्लेस, अ विलेज वर्थ विजिटिंग। ये जाने का रास्ता था। इस गांव में जाने के लिए एक बार में मुझे 7 किलोमीटर एक तरफ पैदल चलना पड़ता था, यानी एक विजिट के लिए 14 किलोमीटर पैदल चल के इस गांव में पहुंचना होता था। अभी मैं लगभग 311 विजिट मेरी हो चुकी है। अगली 25 दिसंबर को पुनः मैं जाऊंगा, क्योंकि वो दिन रक्षाबंधन का दिन होता है, वहां पे उसकी एनिवर्सरी होती है। जनरली हम लोग छुट्टी का दिन रखते हैं ताकि उपस्थित हो सके। रास्ता ऐसा कि जिसपे साइकिल भी ना जा सके। एंड नाउ उसी समय 2007 में पहली बार मैंने महात्मा गांधी नरेगा योजना का यूज करके ये रास्ता बनाया था। श्रमदान से उन्होंने अपने 20 फीट कुएं बनाए नदी में, श्रमदान से। और दिस इज हाउ द फर्स्ट इरिगेशन विलेज वाज क्रिएटेड। फ्रेंड्स, इन 2008 आई वाज ट्रांसफर्ड टू रांची। वो यहाँ से 270 किलोमीटर दूर था। जब भी मैं किसी से कहता था तो जाने में मुश्किल होती थी लोगों को। मुझे लगा कि रांची के बगल में 2 गांव को करें। मेरे अंदर एक डर भी था कि क्या पता, दूर का गांव था, जंगल के अंदर था, उसकी मजबूरी थी, वो हमारे साथ काम कर लिया। अर्बन एरिया से नजदीक लोगों में ग्रीड ज्यादा होगी, वो शायद मेरी बात नहीं मानेंगे। और वो इस गांव के लिए सच भी हो सकता था, क्योंकि इंटायर विलेज वाज कमिंग टू अर्न वेज इन रांची, वेयर एट दोज डेज इट वाज 500, 550, 600 rupees per day. But I was proven wrong. Regular weekend visits started in this village also. And within 10 to 15 visits, the magic began here also. इस तमाम विजिट, डिफरेंट फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, महिलाओं के साथ अलग मीटिंग, पुरुषों के साथ अलग मीटिंग, गांव में प्रतिदिन झाड़ू लगना, प्रतिदिन कॉमन स्पेसेज में। इसके लिए हमने एक अलग तरह का, डेली झाड़ू तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन सफाई के लिए पंचसूत्र बनाया है। झाड़ी मुक्त, प्लास्टिक मुक्त, ग्रे वाटर फ्री, कंपोस्ट पिट एंड ओपन डेफिकेशन फ्री। ये पंचसूत्र फॉलो कर देते हैं तो 6 महीने में हमारे गांव मच्छर मुक्त हो जाते हैं। वी हैव मोर देन 25 विलेजेस हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज मॉस्किटो फ्री। 6 बजे के बाद आप आए, एक मच्छर दिखाएं, 2000 रुपए की नोट इनाम में लेके जाए। सी, जब पहली बार होती है वहां पे सफाई तो किस तरह का सिनेरियो होता है। इवन द कॉमन स्पेसेस, या दीज आर द पीपल हु हैव क्लीन्ड देयर विलेजेस लाइक एनीथिंग। देन प्लास्टिक फ्री, उन्होंने अपना बनाया है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखते हैं। आप खुद देखें किस तरीके से, ऐसा लग रहा है कि जैसे मारुति की असेंबली लाइन है। एक भी पैसा सरकारी नहीं, लोकल बांस, अपना कारीगर और अपना अपना डस्टबिन उन्होंने बनाया, यहां तक कि उसको कलर भी किया है अपने पैसे से ग्राम सभा ने। देन द थर्ड थिंग, ग्रे वाटर, जो भी गंदा पानी है उसको रास्ते पे ऐसे ना बहे, इसके बारे में उनको चर्चा की गई, बताया गया। और उन्होंने अपना, हम जो सोकपिट बनाते हैं वो आधे घंटे में एक परिवार अपना बना लेता है। एक माँ भी अपना सोकपिट आधे घंटे में बना लेती है, सॉरी 3 घंटे में बना लेती है। आधे घंटे मैंने बोला, 3 घंटे में बना लेती है, क्योंकि ये 3 बाई 3 बाई 4 का एक गड्ढा होता है बस। जो भी हैंडपंप है उनके बगल में उनके गड्ढे बन गए, जगह को थोड़ा सा सुंदर भी कर लिया, जरूरत पड़ी तो उसको ढक भी लिया। कंपोस्ट पिट, 4th वन, गांव से थोड़ा दूर, अदरवाइज घर के बगल में ही गोबर और इत्यादि रखते हैं, जहां अगर मक्खियां बैठेंगी वो खाने पे आएंगी तो हैजा और टाइफाइड तो होगा ही। दूर कर दिया गंदगी को। देखें ये गंदगी गांव में है, गुहाल बगल में है, वहीं पे है घर के पास में। इन सारी चीजों को क्लीन करके ले जा करके कंपोस्ट पिट में रखती, गांव को ब्यूटिफाई। एंड देन ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। और ये पंचसूत्र फॉलो होते ही गांव अलग ही दिखने लगा। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। गरीब अमीर सबके पास गांव में सफाई के औजार होते हैं। गरीब के पास 1 फीट का 2 फीट का झाड़ू होगा, अमीर के पास हो सकता है 5 फीट का झाड़ू हो, लेकिन होता सबके यहाँ है। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में झारखंड के लिए, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैंने एक तकनीक लगाई है जिसमें 100%, यस व्हेन आई से 100%, 100%, जनरली इंजीनियर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ बोलते हैं, बट आई से 100% रन ऑफ इज कंट्रोल्ड हियर। और इस तकनीक से झारखंड की टोपोग्राफी में, झारखंड के रेनफॉल इंटेंसिटी में और झारखंड के सॉइल के टेक्सचर पे जो वाटर कंजर्वेशन होता है वो 1 साल में 1 हेक्टेयर में 1 करोड़ लीटर होता है। आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे। और एक बार जब पानी इन सिटू कंजर्व होने लगा तो झारखंड की अपलैंड, जिसको झारखंड की बेन बोला जाता है, वो यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाती है। And then they get converted into beautiful orchards with intercropping also, can see. तो ये गांव
फार्म पॉन्ड बने, फिशरीज हुई, ट्रेनिंग कराए गए, कंपोस्ट पिट बनी, आंगनवाड़ी को भी ठीक किया गया, और नेचुरल फॉरेस्ट में, जैसा मैंने कहा, रक्षाबंधन और अन्य चीजों के साथ, एंड देन द विलेज गॉट ट्रांसफॉर्म. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विजिटेड, sat with the villagers on the ground itself, tried to learn, और उसके बाद उन्होंने इसी एक्सपीरियंस पे एक नई योजना भी लॉन्च की, जिसमें मुझे खूंटी जिले के 760 गांव मिले सितंबर 2019 में कार्य करने के लिए. इनफैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो मेंशन, क्योंकि 700 चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम, जिनकी सरकारी एस्टिमेट में कीमत होती लगभग 8 करोड़ रुपए, 75 दिन, जब 2019 में जनरल इलेक्शन चल रहा था, तो जनरल इलेक्शन के समय डिस्ट्रिक्ट बिलो बहुत ही बिजी हो जाते हैं लोग, एंड वी हु आर वर्किंग इन द स्टेट कैपिटल जनरली खाली रहते हैं. स्टार्टेड विजिटिंग, मोटिवेटेड देम, और अपने नदी को, जो गांव की नदी थी डंबा, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने 700 चेक डैम बनाए, जो 8 करोड़ रुपए का था, 75 दिन के अंदर सभी गांव वालों ने श्रमदान से. सो फ्रेंड्स, क्लीनलीनेस का काम हो गया इस गांव में, वाटर पे गजब का काम हुआ, हेल्थ, बीमारी खत्म हो गई, खास करके वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न. 90% इसी पे उनका इन्वेस्टमेंट होता था या एक्सपेंडिचर होता था. न्यूट्रिशन पे काम हुआ, एजुकेशन पे काम हुआ. आज के दिन इस गांव में जो स्कूल चलता है, आप आए, आपको देखने में लगेगा कैसा इनोवेशन है. दिस वाज द ओनली स्कूल ड्यूरिंग कोविड जो पूरे देश में चला है. ऐसा इनोवेशन था, विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ. राइट फ्रॉम IIT टू JNU टू TIS से लेकर के DPS, ऋषि वैली, सारे स्कूल बंद थे अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लेकिन ये स्कूल चला. कैसे, आप पूछेंगे तो बताएंगे. एग्रीकल्चर, 64 एकड़ में इस गांव में ड्रिप इरिगेशन है, जहां तीसरी क्रॉप होती है. गांव से 40 फीट ऊपर जो खेत है, उसमें तीसरी क्रॉप तरबूज लगाया जाता है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ब्यूटीफुल वर्क, कंपोस्टिंग, नशाबंदी, लोटाबंदी कहते हैं ये ODF को, ओपन डेफिकेशन फ्री, बाहर कोई ना जाए. दहेज बंदी, कुल्हाड़ी बंदी, डीप बोरवेल बंदी. इस गांव में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने बोरवेल अलाउ किया है, बाकी सिंचाई के लिए नहीं. सिंचाई के लिए हम फ्लक्चुएटिंग वाटर टेबल, हम इरिगेशन वेल को यूज करते हैं. डिस्प्यूट फ्री. 3 हफ्ते में नई बहुओं ने अपने गांव को, सभी जो ओल्डर लोग थे उनको अंगूठा लगाने से, सिग्नेचर करने से की जगह जो करते थे वो उसको खत्म कर दिया. और इस गांव का जो सबसे गरीब परिवार था, जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 इंच जमीन, दूसरे के जमीन पे झोपड़ी डाल करके रहता था जिसका परिवार, और खेती से काम करता था, उसने 2 साल के अंदर अपनी ग्राम सभा को स्विफ्ट डिजायर कार गिफ्ट कर दिया. कैसे, आप पूछेंगे तो बताऊंगा. सूरज करमाली, सीइंग इज बिलीविंग. मनी ऑफ द पीपल, नीति आयोग, अमिताभ कांत सराय, UPSC chairman also visited my village around 3 years back, and CM और अन्य सभी लोग तो आए. इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजिट 5 मई 2018 को स्लॉटेड थी. अमरजीत सिन्हा सर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे व्हेन ही वाज सेक्रेटरी RD, बट अनफॉर्चुनेटली कर्नाटका के इलेक्शन की वजह से उस साल वो विजिट नहीं हो पाई. बट फ्रेंड्स, 3 विलेजेस ट्रांसफॉर्म हो गए थे 2017 तक. लेकिन क्या फर्क पड़ता? 6.5 लाख गांव में 75 साल बाद अगर 3-4 गांव हो भी जाएं, और अगर मैं अकेले ऐसे करता रहूं, तो इन माई लाइफ टाइम आई विल बी एबल टू डू मे बी 10-15 आउट ऑफ 6.5 lakh villages. This is not something to be happy. So with replication in my mind, I would again like your attention, sir. I have again visited the villages कि कैसे इसको बाकी गांव में किया जाए. It was in 2017-18. I visited these 3 villages only, asked them कि भाई ये कैसे हुआ, आपने नशा क्यों बंद किया, आपने इतना लंबा श्रमदान क्यों किया, आपने ये चेक डैम क्यों बनाए, आपने पंचसूत्र क्यों अपनाया सफाई का, आप हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे जो काम किया आपने क्यों किए. तो उन्होंने जो बताया, कहा कि सर जो आप वीकली आते थे हमारे यहाँ, वो सबसे पहले वो कारण है. तो मैंने इसका नाम दिया इन्वेस्ट टाइम इन द विलेज. दूसरा उन्होंने कहा कि सर जो आपने ग्राम सभा बना दी ना, कि हर वीक बैठक होती थी, आप चले जाते थे तो गांव में जो नेगेटिव एलिमेंट थे, खास करके मिडलमैन, वो बिल्कुल हमको तोड़ने पे लग जाते थे, लेकिन हमारी ग्राम सभा ने उस पर काबू पा लिया, जो संगठन हमारी बनी.
तो मैंने लिखा ऑर्गेनाइज एंड यूनाइट द विलेज एट द लेवल ऑफ ग्राम सभा। और तीसरा जो आप या आपके साथ जो लोग विभिन्न विषयों पे आकर के हमको बताते थे, वो बड़ी चीज थी, उसका मैंने नाम रखा लोक शिक्षण। फ्रेंड्स, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि आपने ले आकर के 2 लाख रुपए सबको बांट दिए या 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया या कुछ और कर दिया। यही 3 कारण उन्होंने बताए जिसकी वजह से वो गांव ट्रांसफॉर्म हो गए। तो अब मैं सोचने लगा कि ये 3 काम गांव में करेगा कौन? मैं तो नहीं कर सकता 6.5 लाख गांव में अकेले। तो माई एक्सपीरियंस टोल्ड मी, एंड लेडीज इन द हाउस कैन क्लैप फॉर देमसेल्व्स, कि ये काम पुरुष नहीं कर सकता। कि पुरुष बाई पता नहीं इवोल्यूशन नेचर, आई फाउंड देम इवन द रूरल पीपल मोबाइल, एम्बिशियस एंड ग्रीडी। तो मैंने सोचा कि महिलाओं को इस काम को देते हैं, जो काम मैंने खुद किया था प्राइम मूवर का 3 गांव में, एंड आई गिव इट अ नेम और डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइम मूवर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। सो आई सिलेक्टेड मदर्स एज प्राइम मूवर्स फॉर द रीजन आई जस्ट मेंशन्ड। क्योंकि माताएं हैं, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हों, उनको अगर हम लें, थोड़ी अगर उनके अंदर आर्टिकुलेशन है, तो प्रोबेबली दे विल बी एबल टू डू दिस वर्क वेरी नाइसली। These are the change makers. These are the prime movers. और क्या इनका क्राइटेरिया है? Their kids should be grown up. They should be 10th or 12th pass. They should be articulate in Hindi and local language. Hindi, because we will be mostly training them in the Hindi, and maybe in some of our districts they are required to translate it in local language, maybe Mundari, Santhali or whatsoever. Ready to live in a village in neighboring district. They will not be from the same district. They will be from the neighboring district. जैसे अगर खूंटी में काम हो रहा हो तो रांची से या गुमला से होंगे। They will be working on 4 week 1 week cycle. 4 सप्ताह हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद 1 सप्ताह की छुट्टी देंगे, अपने घर चली जाएंगे। लेकिन जो 4 सप्ताह हमारे साथ रहेंगे उनको हम कोई छुट्टी नहीं देते हैं। They are like mother to the villages. मैं उनको बोला कि एक घर में आप बेटी के तौर पे पैदा हुई, दूसरे जगह जहां आप शादी के बाद गई उसको आपने अपना घर बना दिया। अब आप, अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप एक पूरे गांव को ठीक कर दें, तो आप मेरे साथ आइए। अगर उनके घर के लोग तैयार हुए, वो भी तैयार हुई, तब हम उनको सेलेक्ट करते हैं। एंड देयर इज नो लीव इन द 4 week पीरियड। चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, अपने इस अडॉप्टेड विलेज में उनको रहना है। सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए हम 2 प्राइम मूवर्स को, 2 मदर्स को एक साथ नेस्ट करते हैं। बगल के 2 गांवों को केयर करती हैं, जिसमें नेस्ट करती हैं उसको, और नेबरिंग विलेज 2 इन गांवों को वो केयर करती हैं। और हर महीने इनका ट्रेनिंग होता है, ताकि वो उस विषय पे जाकर के गांव को बता सके। तो फर्स्ट ट्रेनिंग जो उनकी होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, वो 10 दिन की होती है। तो आउट ऑफ 4 weeks सिर्फ 20 दिन गांव में रहती हैं। लेकिन दूसरी जो ट्रेनिंग होती है वो 2 रात 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, और 27-28 दिन गांव में रहती हैं। और फिर 1 week की छुट्टी होती है, और फिर ट्रेनिंग होती है, फिर गांव में जाती है, और ये साइकिल चलती रहती है। किस चीज पे हम अपने प्राइम मूवर्स की ट्रेनिंग करते हैं? कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो कंट्री में पहली बार हमने बनाया 2019-20 में। ग्राम सभा का मॉड्यूल है हमारे पास। हेल्थ पे तो मॉड्यूल बने हुए, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एनीमिया, टीबी, लेप्रोसी। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी जानकारी हुई, बिकॉज बाय ट्रेनिंग आई एम एन इंजीनियर, मुझे नहीं पता था। अब जैसे लेप्रोसी की हमारे पास ऐसी दवा है, और सभी लोग डॉक्टर जानते हैं, एक खुराक में लेप्रोसी 99.9% ठीक हो जाती है। जितने भी आप लेप्रोसी के पेशेंट रोड पे देखते हैं, वो सब क्योर्ड पेशेंट हैं, वो दूसरे को कुष्ठ नहीं फैला सकते हैं एक खुराक सिर्फ खिला देने से। लेकिन अभी भी हमारा देश दुनिया का लेप्रोसी कैपिटल माना जाता है, टीबी कैपिटल माना जाता है। व्हाई? क्योंकि अभी भी हम सही समय पे लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, रोगी की पहचान नहीं कर पाते हैं। वेक्टर एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सभी चीजों पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। स्वच्छता पे ट्रेनिंग देते हैं, श्रमदान पे ट्रेनिंग देते हैं। कोई मॉड्यूल ही नहीं बना था श्रमदान का, हमने पहली बार बनाया। न्यूट्रिशन पे ट्रेनिंग देते हैं। हमको भी लगता था कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक ही चीज है, दो इट इज नॉट। एजुकेशन पे ट्रेनिंग दिया, जल संरक्षण, वन संरक्षण, नेचुरल फार्मिंग की एक नई चीज हम लोगों ने सीखी, अमृत कृषि। अभी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर नेचुरल फार्मिंग, फिर अमृत कृषि। सो वी आर ट्राइंग टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन द विलेजेस नाउ। लाइवलीहुड की ट्रेनिंग दी, सोशल इश्यूज की ट्रेनिंग दी कि कैसे गांव को नशाबंदी की तरफ ले जाते हैं। बेस्ट ऑफ द एनजीओ यू विल फाइंड, नोबडी वर्क्स कि कैसे गांव को नशाबंदी पे काम करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड वी आल्सो डू एक्सपोजर of the prime movers and the villagers both. In fact, our program rests at present on 2 pillars. एक तो प्राइम मूवर गांव में रहती हैं,
2 प्राइम मूवर एक साथ 2 गांव को देखती हैं, और 6 प्राइम मूवर के ऊपर एक मेंटर हम रखते हैं जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो एक मेंटर और 6 प्राइम मूवर मिलकर के 6 पास के गांव को स्वावलंबन पे आगे लेकर के जाते हैं। These are the people. The one who is behind is just 8th pass, but she has transformed her village in 6 months flat. So, sir, what we do basically? Basically, we prepare the community to take responsibility of the issues faced by them. हमारे वर्तमान सिस्टम में है ही नहीं है। हमने ये मान लिया है कि हम ब्यूरोक्रेसी में हम बैठे हुए लोग या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम जाकर के लोगों की गरीबी दूर करेंगे, हम योजना बना करके लेके जाएंगे, हम उनको पेंशन देंगे, हम उनको राशन देंगे, हम उनको पानी देंगे, हम उनको स्वास्थ्य देंगे, हम उनको पोषण देंगे। दे ही नहीं सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइजेशन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हमारी बन रही हैं अभी भी ऐसे ही बन रही हैं कि हम ही करेंगे। सो व्हाट वी डू बेसिकली, वी डू रेगुलर, इसी स्लाइड से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रेगुलर वीकली मीटिंग ग्राम सभा की शुरू कराते हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ग्राम सभा में 18 साल के ऊपर के लोग रहेंगे। हमारी ग्राम सभा में हर बच्चा भी रहता है, मैया कहते हैं हमारे यहाँ डॉटर्स को, एडल्ट्स एंड गर्ल्स भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं। अब तो हमने रोते हुए बच्चों को भी अलाउड कर दिया, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो माँ भी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। इट्स ह्यूज लर्निंग कि कैसे हमारे गांव में निर्णय लिए जाते हैं, कैसे इश्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाता है, और फिर हम काम करते हैं। देन कलेक्टिव डेली क्लीनिंग ऑफ द विलेज स्पेस, ये हमारी ड्यूटी है। रोज जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, वैसे अपने घर के सामने के रास्ते को भी, अपने गांव के अखड़ा को भी, अपने गांव के स्कूल को भी, आंगनबाड़ी को भी, वहां की भी सफाई करेंगे। वहां बट गया सबका, और आधे घंटे में काम हो जाता है, और बाद में तो 15 मिनट भी नहीं लगते। जब रोज सफाई होती है तो पत्ते भी इतने नहीं गिरते कि उनको उठाया जाए। रेगुलर श्रमदान, ये अलग चीज है। महीने में 2 दिन हमारे गांव में श्रमदान रखा जाता है। वो ग्राम सभा डिसाइड करती है। उस दिन बाहर नहीं जाते लोग। अगर कोई बीमार ना हो तो उस दिन रिश्ते में भी जाना मना रहता है ग्राम सभा के निर्णय से। गांव में श्रमदान करना है होल डे। अल्कोहल फ्री, डिस्प्यूट फ्री, झगड़ा मुक्त। जो भी झगड़े हैं उसको ग्राम सभा सुलझाती है। दोनों पार्टी की सहमति से हमारे यहाँ पंच चुने जाते हैं और वो डिसाइड कर देते हैं। नो चाइल्ड मैरिज, नो चाइल्ड लेबर, 100%। हम दो हमारे दो, जेंडर इश्यू, सुपरस्टिशंस। आप ये बताएं, इन जो चीजों को मैंने लिखा है इसमें कोई भी चीज सरकारें कर सकती हैं? नहीं, एक भी चीज सरकार नहीं कर सकती। और ये चीज जिन गांव में हो जाए, वो गांव कैसे हो जाएंगे? प्रोबेबली हुआ नहीं, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन स्वच्छता। क्यों स्वच्छता? क्योंकि इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। आज अगर हमने काम कर दिया तो शाम को इम्पैक्ट दिखता है। तो झाड़ी मुक्त, लैंटना, वाटर हाइसिंथ, पार्थीनियम, गाजर घास जिसको कहते हैं। प्लास्टिक मुक्त। प्लास्टिक को मुक्त करने का मतलब ये हुआ कि हम, प्लास्टिक तो गांव में आ जाता है, क्योंकि आज बिस्किट के रैपर के अंदर भी प्लास्टिक के रैपर में बिस्किट रहता है। तो उसको हम एक ऐसी जगह रखते हैं ताकि वो मिट्टी में या इधर उधर न उड़े, फैले। और बाद में अगर रिसाइकिल के लिए कोई आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको जलाते नहीं है, दबा देते हैं। ग्रे वाटर मुक्त, हर घर सोखता। जैसा मैंने कहा 3 घंटे में आज ग्राम सभा डिसाइड की और अगले सैटरडे को 3 घंटे 7 से 10 के बीच में लगभग 90% घरों में सोखता गड्ढा बन जाता है। हमने कभी कम्युनिटी के पावर को यूज ही नहीं किया। हम सोचते हैं हम ही करेंगे और एस्टिमेट बनाएंगे इंजीनियर साहब, उसका हनी कॉम में ब्रिक की लाइनिंग जोड़ेंगे और ऊपर आरसीसी का ढक्कन लगाएंगे, जो कि जरूरी ही नहीं। कंपोस्ट पिट, गोबर गड्ढा जो मैंने आपको दिखाया, और ओडीएफ, खोले में शौच से मुक्त। 6 महीने सिर्फ इस काम को कर दिया जाए तो हमारे गांव वेक्टर फ्री हो जाते हैं और इवन वाटर बॉर्न डिजीजेज भी खत्म हो जाती है। इसी काम को करने के दौरान मैंने देखा कि मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 6 बीमारियां गांव में फिर दस्तक नहीं देती, जो वेक्टर बॉर्न। और इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा, समझा इसको, कि जैसे मादा एनाफिलीज से पानी में रहती है, अंडे देती है गंदे पानी में वगैरह वगैरह, लेकिन इसका जो हस्बैंड है, मेल, वो पॉलेंस खाता है। ये मुझे अपने काम को करने के बाद किसी ने मुझे बताया, किसी एक्सपर्ट ने जो हमारे यहाँ आए थे उन्होंने बताया, वाज एन एंटोमोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा सर, जो आपने झाड़ियां खत्म की तो आपने पूरी साइकिल ही खत्म कर दी, क्योंकि मेल का जो भोजन है वो पॉलेंस है। तो आपने सारी झाड़ियां खत्म कर दी, पॉलन नहीं है। तो माता जी उधर चली गई और
पिताजी उधर चले गए तो अब कोई है ही नहीं है गांव में, तो अब मच्छर इसलिए खत्म हो गए। हेल्थ के इंडिकेटर्स, मैंने कोई ऐसा, चूंकि मेरे पास कोई योजना नहीं है, मैं योजना पे काम नहीं करता, हमारे इस स्वावलंबन में कोई अलग से फंड नहीं है किसी काम को करने के लिए, सिर्फ हमारे पास प्राइम मूवर है और CLMH है प्राइम मूवर्स के ऊपर, और कुछ भी नहीं है, और उनकी ट्रेनिंग और एक्सपोजर है। 100% इम्यूनाइजेशन ऑफ किड्स, ये यूनिवर्सल प्रोग्राम को मैंने सिर्फ वहां पे उतार दिया है लोगों की मदद से। 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 3-4 महीने के बाद होना शुरू हो जाता है गांव में। 100% एनीमिया फ्री विलेज, कोई IFA की टैबलेट्स ही नहीं खाता है, तमाम तरह की उनके अंदर मान्यताएं हैं, स्टूल कलर्ड हो जाता है, दिस दैट, वेक्टर बॉर्न डिजीज फ्री, वाटर बॉर्न डिजीज फ्री, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, TB, लेप्रोसी, और जितनी भी पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेज हैं और कल्चरल टैबू हैं, उन सबको हम एड्रेस कर लेते हैं वेरी क्विकली। देन न्यूट्रिशन, अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट, तिरंगा थाली है। 100% केयर ऑफ एग्जिस्टिंग माल न्यूट्रिशन किट्स, मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट जिसको हम स्टंटिंग एंड वेस्टिंग कहते हैं। 1000 डेज जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, और 2000 डेज अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया है बच्चियों का, कि मैरिज के पहले भी 3 साल और कंसीव करने के बाद का 1000 साल। सो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि फूड सिक्योरिटी हो गई तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो गई, बट नाउ आई अंडरस्टूड कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट इंक्लूड्स प्रॉपर केयर, सैनिटेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी। आइडियल आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन इन द विलेज, कोई ध्यान ही नहीं देता है हिंदी बेल्ट में आंगनबाड़ी केंद्रों का, बहुत ही पूरी। माल न्यूट्रिशन फ्री जो अभी अभियान है उसको हम यूज करते हैं, और हर घर में वी ट्राई टू हैव अ न्यूट्री गार्डन। एजुकेशन पे, इस पे अगर आप आए और देखें इसको तो आपको आश्चर्य होगा कि ग्राम सभा ने अपने यहाँ 8-8, 9-9 BEd टीचर रिक्रूट करके रखा है। दे आर पेइंग देम वंस उनकी, क्योंकि हमारे गांव की इनकम जो है लगभग 3 साल में ही 5 गुना बढ़ गई, तो वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 2 पैरा टीचर रखे हैं, वहां पहले 36 बच्चे पढ़ते थे, आज 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इनकी फीस देंगे, 200 रुपए फीस देकर के उन्होंने टीचर रख लिया। 100% एनरोलमेंट, 100% एडल्ट लिटरेसी, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुओं ने सिखा दिया अपनी मदर इन लॉज और फादर इन लॉज को कि कैसे सिग्नेचर करते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी चीज नहीं है इम्पैक्ट के तौर पे, लेकिन कॉन्फिडेंस के तौर पे बहुत बड़ी चीज है कि जो आदमी आज तक पैड पे अपना अंगूठा लगा करके साइन करता था, आज वो अपना नाम लिखता है। हायरिंग ऑफ टीचर बाय द कम्युनिटी, विलेज लाइब्रेरी, मैंने देखा है हमने वो चीजें हम भूल गए हैं कि क्या हम पढ़ें और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हमें अपने अतीत पे अपने गर्व नहीं होगा, शायद हम एक सशक्त भारत नहीं बना सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन इज आवर फोकस। मॉन्यूमेंटल वर्क हैज बीन डन अंडर जल स्वावलंबन, जैसा मैंने कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, तो watershed management, risk to valley approach, everything, farm pond, field bund, tree CB, all those things have been done in the villages. No deep bore well, and wells only for irrigation we use, or in turn we conserve 1 crore liter of water per hectare. अगर आप पूछेंगे तो I'll tell in detail. Forest and biodiversity, not that I'm an IFS officer, I'm dealing this subject in a little detail, but this is the importance particularly in the प्लेटो रीजन, कि पहाड़ी के ऊपर का जो जंगल है उसका बहुत ही महत्व है ऐसे रीजन में। और अगर आप में से कोई अगर हिवरे बाजार गया हो तो आप, उन्होंने 1995 में शुरुआत कैसे की पोपटराव पवार ने, तो आप मेरी बात को समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंस है प्लेटो रीजन में जो पहाड़ी है उसको हरा भरा रखने में। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर और तमाम चीजें भूल जाएं। तो अगर नेचुरल फॉरेस्ट है तो वी डू दीज थिंग्स, नो हंटिंग, नो ओपन ग्रेजिंग, नो कटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉल फीडिंग, स्टॉप यूज ऑफ फैक्स, नो कुल्हाड़ी बंदी, तमाम बंदी हम बोलते हैं, इंक्रोचमेंट, नो इंक्रोचमेंट। MNFRA में जो गलत ले लिया उसको भी वापस कर देते हैं, नो फायर इन द फॉरेस्ट एरिया। और जहां पे नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है वहां पे वी डू प्लांटेशन। एक गांव में 15-15 हजार, 20-20 हजार पौधे हर वर्ष अपनी नर्सरी उगा करके गांव के लोग लगाते हैं। और इवन गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सल स्कीम्स है जैसे महात्मा गांधी नरेगा, उसका भी यूज कर लेते हैं। देन एग्रीकल्चर, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, जैसा मैंने कहा कि गांव में पहले हमने बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह पे ध्यान दिया, लेकिन अब मुझे लगा कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी से इस काम को करना। मार्केट की दिक्कत है, सब्जी और अन्य चीजों में अभी वो मार्केट नहीं है, लेकिन ग्रेन्स में अभी हम कुछ एक्सपर्ट के साथ जुड़े हैं और इसी रबी सीजन से हम लोग बड़े पैमाने पे इसको करने जा रहे हैं।
अमृत कृषि जो मैंने बताया कि कैसे इस चीज को करें, वाटर बजटिंग, एग्री इंटेंसिटी जो हमारी 110-111% थी गांव में जब इंटरवेंशन नहीं हुआ था, आज 170-180 और कहीं कहीं तो मोर देन 200% है। क्रॉप रोटेशन, integrated pest management, all these things are being done. Better planting material, indigenous seeds, seednet and all. Livelihoods के भी different aspects थे। हम वो चीज नहीं करते जिससे उनको अभी तुरंत गांव छोड़ना पड़े, जो एलियन हो। हम वो चीज शुरू कराते हैं लाइवलीहुड में जो ऑलरेडी करते आए हों। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो वी स्टार्ट विद हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन, इंटरक्रॉपिंग, डेयरी, बी कीपिंग, पिगरी, फिशरी, गोटरी। मुझे ये सब नहीं आती थी, बट आई लर्नड ऑल ऑफ देम। मैंने ये सीखा कि पिगरी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एनिमल हस्बेंड्री वेंचर। एंड देन ऑलमोस्ट पूरा गांव ही आच्छादित हो गया, ये तमाम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के हमारे पास टूल्स थे। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी डू। वी स्टे इन द विलेज, वी कीप इंटरेक्टिंग विद द पीपल। डिफरेंट लोगों से, एडल्ट्स एंड गर्ल्स से अलग से मिलते हैं, माताओं से अलग से मिलते हैं, बच्चों से अलग से मिलते हैं, उनके साथ सुबह योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खेलते हैं उनके साथ, और धीरे धीरे गांव में हमारी पैठ बन जाती है और गांव को हम अच्छी बातें बताते हैं, गांव अपनी बुराइयों को छोड़ता है, एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स। दीज आर ऑल द फोटोग्राफ्स। हर ग्राम सभा में एवरी वीक देयर इज अ ग्राम सभा। जैसे मैंने बताया, सभी लोग बैठते हैं, हर घर से 2 लोग आना मैंडेटरी है, नहीं आते हैं तो फाइन भी होती है। वो गांव डिसाइड करता है, 50 रुपए, 20 रुपए, वॉट एवर, और उसके मिनट्स लिखे जाते हैं कि क्या अगले हफ्ते में हम करेंगे। पढ़ के सुनाया जाता है मिनट्स को, एंड देन दे साइन। दिस इज व्हाट वी डू। आप आए एक एक गांव में 200-200, 300-300 एकड़ एरिया, जितना भी उनका है, चाहे उनका दोन हो या उनका टाण हो, कंप्लीट मेड़बंदी आपको मिलेगी। और अगर किसी गांव में 400 एकड़ में मेड़बंदी हो गई है इस तकनीक से, तो 400 हेक्टेयर, करोड़ लीटर पानी जमीन में जा रहा है हर वर्ष, और वही पानी हमको वाटर टेबल के इनहेंसमेंट के तौर पे दिखेगा, एनवायरमेंटल फ्लो के तौर पे हमारे स्ट्रीम में दिखेगा, एंड देन द विलेज गेट्स ट्रांसफॉर्म। एवरी मॉर्निंग इट इज हैपनिंग, इवन इन द ट्राइबल विलेजेस। हम योगा नहीं बोलते क्योंकि खास करके जहाँ पे कन्वर्जन वगैरह है वहां दिक्कत होती है लोगों को बहुत सारी, तो हम उसको पीटी बोलते हैं। आओ पीटी करें। सभी बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, शाम को गेम्स खेलते हैं, पढ़ते हैं। वहां पे गांव के बच्चे जो बड़े हैं वो पढ़ाते हैं। कहीं कहीं पे गांव वालों ने उनको कुछ पैसा भी देना शुरू किया है, 50 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, तो उनका भी अपना खर्च चल जाता है और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है। अमृत जल बनाने का घर घर में हम लोगों ने इसको किया कि हम अमृत जल बनाएं, और हम धीरे धीरे पहले अपने बारी मीन्स होमस्टेड लैंड, वहां पे पहले यूज करें, और जब इम्पैक्ट देखें तो अपने खेतों में करना शुरू करें। और हमने ये सीखा है कि काउ यूरिन इज 5 to 6 times more potent fertilizer than cow dung. SRI methods, इनफैक्ट CRI कह सकते हैं, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, हर जगह हम लाइन सोइंग करते हैं और अन्य तरीकों से हम काम कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, सो फार दो अभी तो हम इसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, यद्यपि हमको 760 गांव मिले थे खूंटी के पूरे, 40 ही प्राइम मूवर हमको रिक्रूट करने का था, तो 40 गांव में हमने काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इसको हम 67 विलेजेस में ले गए, क्योंकि नाउ वी आर 4 year old। रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 20 times to 100 times। आप कल्पना नहीं करेंगे, जिन गांवों में 3.25 करोड़ की शराब पी जाती थी, कुछ गांव में, यस होल्ड योर सेल्फ, हमने ऐसा भी पाया है। एक पलामू में हम काम कर रहे हैं, एक गांव में जहां देह व्यापार तक होता था, इट इज ऑन औरंगाबाद बॉर्डर, विद इन 6 months वी फिनिश्ड इट। 3.25 करोड़ की शराब पी जाती थी, बंद हो गई। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ शराब बंद कर दीजिए गाँव में, उनकी इनकम डबल सीधे तौर पे हो जाती है, और अगर हेल्थ वगैरह के एक्सपेंडिचर को भी लॉन्ग टर्म में देख लें तो शायद सेविंग्स ट्रिपल हो जाती है। और कहते हैं एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड। इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 5 लाख रुपए एक गांव पे 1 साल में होता है, और जो रिटर्न है, ये मैंने ऊपर ही बताया कि ईयर ऑन ईयर 20 to 100 times। So what is the roadmap for poverty free India? To my mind, create successful clusters and blocks in each state। क्योंकि seeing is believing। आज के दिन हमारे पास, सिस्टम के पास, नीचे से ऊपर तक कोई मॉडल नहीं है जो रिजल्ट देता हो। जब आप दिखाएंगे तो दे आर रेडी, दे आर ओपन, लेकिन उनके पास नहीं है, तो हर चीज को कंटेम्प्ट के साथ देखने की हमारी आदत हो गई।
तो फिर जैसा चला आ रहा है वो योजना साल भर का वो चलेगी. Within 6 months to 1 year, result will be visible. In 2 years, cluster and block will be on the verge of transformation. Then the governments may chip in through a unique system. जैसे आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक संस्था है BRLF, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, या एक कोई नई सोसाइटी, भारत ग्राम स्वावलंबन सोसाइटी, we can frame. And then I think within 10 years, the country will be transformed substantially. Thank you so much, sir. Thank you so much. What a scintillating presentation. Friends, we are open for questions and answers because some of you had raised your hands, and so one by one you may please ask questions. We have about 15 May I? Yeah, please. Yeah, I'm Ambashed, having worked for the first time in not only in this country but throughout the world. My work on tribal education in Ranchi district is a pioneering work, a PhD program done in 1966, and I must commend your beautiful efforts that you have done in an integrated manner, not only in education, but all-round development of the village. I want to share a couple of things that I did during my work in NCRT, working on developmental needs of tribal people. There are 2 blocks in Santhal Pargana that I did intensive study in, Gopi Kandar and Amrapara. The video took me to one of the villages where applied nutrition program was running. And when he returned in his jeep, all the eggs that were for lactating and nursing mothers and fish from the pond were loaded in his jeep. In Amrapara block, one of my acquaintances was a doctor who went to see villagers on his motorbike and charged fee, whereas he was supposed to be going on block jeep. And he said that the video doesn't allow him to take the block jeep, and therefore he was charging fee. Now, these things are part of the report that I submitted to the then Department of Social Welfare, Government of India. But nothing happened, simply because it was a study. It was done, it was submitted, it was printed, and it was left in the drawers of the concerned officers, no follow-up action. My concern is, sir, with all due respect, only last 2 months back, I was in Tupudana. You are aware, you are working in Khuti and all that. Sir, the kind of commitment, dedication, and sincerity with which you have worked in an integrated manner is, to my mind, is the prime motivating, prime mover in the entire thing. So what, compare it with the behavior of the Gopi Kandar block video or that of Amrapara doctor, or for that matter, the people who are in bureaucracy, are they as motivated, as committed to the very goal of tribal development? Unfortunately, the kind of work that you have done, it needs a much bigger exposure and intensive motivation on the part of people like you, who would, supposing you have moved from Khuti to Palamu. Now, what happens in Khuti? Is it sustainable, and is it it has got the momentum that it can go from this place to further on, or will it retard? So it needs a backup of bureaucrats who are convinced
and who was as motivated as you are. So this system that we have is a kind of a spark in a big area. You are the one candle light showing everything, and there is light, but what happens is elsewhere. So the need to create as motivated prime movers as you are on a bit larger scale. That is number one. Number two, if you So there are recall, some other questions also, some people are there, so can you please keep it short? very short, very short, very short. Or if you ask, I will stop it here. Doesn't matter. Okay, thank you. Okay, Sir, may I come in? please. Sir, this experiment is not dependent on bureaucrats. The work that so far I have done, मुझे पता था सर मैं जगह को नहीं जगा सकता. जब मैं शुरू किया था 2003 में, तो हमारे मित्र कहते थे हजारे और गांधी कहाँ से आएंगे, और अब कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम अपने जैसे भी कहाँ से ले आओगे. तो जिसको नहीं करना वो बहाने ढूंढ लेगा. मैं एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे ही नहीं काम किया. ब्यूरोक्रेट के तौर पे काम करने से मुझे ये पता चला कि सिस्टम कैसे काम करता है. आई एम स्टिल वर्किंग. लेकिन ये हुआ कि फिर आगे कैसे करें, एंड इट इज मिशन ऑफ माय लाइफ. मैं इसको एक रिसर्चर के तौर पे कर रहा हूं, एक मिशन के तौर पे मैंने इस काम को लिया है. मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा कि आप मुझे किसी भी जगह रखें, मैं यही काम करूंगा. टुडे आई एम एट ए प्लेस, वही काम कर रहा हूं. कल मैं 6 साल कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट था, मैं यही काम किया. वहां बाकी काम चल रहा था जैसा चल रहा था, जितना मैं वहां बेहतरी कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को मैंने नहीं छोड़ा. तो इस चीज को मैं समझ रहा हूं कि कहाँ पे कमियां है सिस्टम में. इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि कलेक्टर साहब करेंगे, बीडीओ साहब करेंगे और मुखिया जी करेंगे. कहीं मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है. मैंने किसको लिया? मदर्स को लिया, कंप्लीट पैरेलल. मैंने कहा उनको क्या किया, अच्छा मैं चाह के भी पूरे सिस्टम को नहीं रोक सकता, मैं बजट तो नहीं रोक सकता. तो मेरा इनोवेशन ये है कि जो जैसा चल रहा वैसा चलते रहे. उसके बाद भी क्या ऐसा कोई इनोवेशन हो सकता है कि हम जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन कर दें? तो अगर हम ग्राम सभा को सशक्त कर दें, तो गड़बड़ी करने वाला सर कोई चाइना और अमेरिका से नहीं आता है, वो भी उसी गांव का ही है. और मैं कहता हूं एवरी विलेज इज ए मिनिएचर वर्ल्ड. जैसे आज के दिन हो रहा है इजराइल, यूक्रेन और अन्य तमाम जगहों पे, और लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, और कोल्ड वार में होता था, गांव में भी ऐसे आज भी होता है सर. 2-4 लोग होते हैं, वो किसी को लड़ाते रहते हैं, कुछ और करते रहते हैं ताकि उनका उल्लू सीधा होता रहे. हम जब गांव में लोगों को एक करते हैं तो 50-60-70% लोग बड़े आसानी से एक हो जाते हैं. बाद में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जिस गांव में 60% एक हो जाते हैं सर, उस गांव में माहौल बन जाता है. फिर वो क्योंकि गांव के बीच में वो गलत नहीं बोल सकते. तो ये बड़ा अलग तरह का इनोवेशन है. ये किसी भी सरकारी कर्मचारी पे डिपेंडेंट है ही नहीं. मैं आज के दिन, ये तो जो अभी आपको बताया मैंने खूंटी का, ये तो सरकार की तरफ से चल रहा है. आज हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से मैं पलामू, रांची और अन्य जगहों पे भी इस काम को करा रहा हूँ. 50-60 गाँव में, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कैसे हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग. सो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग. मेरे सरकारी कार्यक्रम प्रणाली से इसका कोई लेना देना नहीं है. आई डिवोट माई हॉलीडेज. और 23 साल में सर मैंने किसी दशहरा, दिवाली, होली, छठ, संडे, सैटरडे को मैं घर पे नहीं रहा हूँ. दे आर माई लिविंग गॉड्स. आई हैव बीन विद देम. द काइंड ऑफ, मैंने सर एक टैबलेट भी नहीं खाया है पिछले 23 साल में. मुझे बुखार भी नहीं होता, मुझे खांसी भी नहीं आती, सर्दी भी नहीं होती. Excellent. जी. I have 4 more people who have raised hands, 5 in fact. Amod ji, फिर Nilabhadra, Sudhakar ji, Anand Gupta ji, and then Rima ji. So quick questions and then probably quick answers, so because we have to close this also program. Amod ji. नहीं, पहले तो सर मैं सिद्धार्थ को बधाई देना चाहता हूं कि इतना शानदार काम सिद्धार्थ ने किया. बहुत डिटेल में मैंने सुना, और आप सबों को मालूम है कि पिछले करीब 35 साल से कुछ इसी ढंग से मिलते जुलते काम में मैं भी लगा हूं. और पिछले 15 साल जब से मैं फ्री हुआ सर्विस से, तब से और ज़्यादा लगने का मौका मिला मुझे. हम लोग 45 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं. प्रयास सिद्धार्थ को शायद मालूम होगा, लेकिन मैं डिटेल नहीं कहना चाह रहा हूँ, सिवाय इसके कि कोई मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कोई 700 को वर्कर्स हमारे पास अभी हैं, और गवर्नमेंट के हर स्कीम को हम लोगों ने जोड़ा है. मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में गवर्नमेंट के स्कीम्स को अगर ना जोड़ा जाए किसी भी सोशल वर्क के साथ, तो रिजल्ट संभव नहीं, ये इम्पॉसिबल है. और गांव के स्तर पे भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देयर आर 14 फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द विलेज.
every panchayat has got 14 frontline workers. और फ्रंटलाइन वर्कर्स अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट्स को से आते हैं, जो सिद्धार्थ ने बताया वहीं से आते हैं वो सारे, और उनको कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न तो इतने रिसोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं और ना हमारे इतने सारे वर्कर्स हो सकते हैं जो इस काम को करें। इसलिए मेरे विचार थोड़े से ये हैं कि विदाउट द कंप्लीट कोलैबोरेशन और एसोसिएशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज इन द सिटीज, इन द टाउन्स एंड इन द विलेज पर्टिकुलरली, या डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके बिना एसोसिएशन के पॉसिबल नहीं है। और अभी आई डोंट वांट टू एलिबरेट फर्दर एक्सेप्ट दैट वी आर एक्सट्रीमली लो ऑन वेरियस इंडिकेटर्स। दैट इज, मैं बार बार कह चुका हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वी आर 132, SDG वी आर 121, हंगर इंडेक्स वी आर टेरिबली बैड शेप, एंड झारखंड इज नो एक्सेप्शन। मैं झारखंड में इनफैक्ट अभी यही मैं इनवाइट करने जा रहा था सिद्धार्थ को, रामगढ़ सिद्धार्थ आप आए, मेरे सेंटर्स प्रयास के रांची में है, अच्छे खासे बड़े सेंटर, रामगढ़ में है, हजारीबाग में भी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने काम किया है। रामगढ़ में जन शिक्षण संस्थान और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं। तो विदाउट टेकिंग योर फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू दैट सेंटर। इनफैक्ट वंस व्हेन आई कम टू झारखंड नेक्स्ट, आई विल मीट यू। आप जरा बता दें कि आप कहाँ होते हैं, अपना डिटेल हमको भेज दें, मैं आपसे मिलना चाहूंगा और मिल करके आपके साथ में जाऊंगा उस सेंटर्स पे जहाँ की प्रयास की कोशिश हो रही है और आप कोशिश कर रहे हैं। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। सर थैंक यू सर। मैं जान भी रहा था सर, आपसे हम लोग जुड़े भी हुए हैं और चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ सर, हमने सरकार के प्रोग्राम को यूज किया बाय स्ट्रेंथनिंग द ग्राम सभा, बाय स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी, नॉट गोइंग टू द डिपार्टमेंट्स कि हमको ये दे दीजिए, हमको ये फंड दे दीजिए, हमको ऐसा कर दीजिए। जो यूनिवर्सल प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पानी पे, नरेगा, वी हैव यूज्ड देम, बट वी हैव यूज्ड देम फ्रॉम द साइड ऑफ विलेजर्स। हम किसी के पास ये नहीं गए कि हम आपका ये कार्ड बना देंगे, हम आपका वो कार्ड बना देंगे। हमने सिर्फ गांव को ताकत दी और गांव खुद ही अपनी उस अधिकार को लेने में सक्षम हो गया। अगर गांव टूट जाएगा तो शायद वो उस अधिकार को नहीं ले पाएगा। अगर हमने 2-3 करोड़ का कम्युनिटी हॉल भी बना दिया, तो मैंने देखा है सर, वहां चमगादड़ उड़ते हैं 2 साल के बाद और उनके दरवाजे भी उखड़ जाते हैं। लेकिन अगर गांव ठीक हो जाता है तो बहुत खूबसूरत काम वहां पे हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जिसे कहते हैं मैन मेकिंग का काम कर रहे हैं सर, ग्राउंड लेवल पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो एकदम सही है। बस एक सेंटेंस और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इस गलतफहमी में न रहें कि ये जो तमाम रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, उनका कोई एहसान नहीं है। इट्स अ राइट। अगर विलेज में कोई भी, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लाइवली हो, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो, किसी भी डायरेक्शन में जब विलेज के लोग आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करती है या उनके साथ काम करती है, तो ये उनका कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं है। मैं एकदम नहीं मानता हूँ इस बात को। वी assert our entitlements. I think it is only assertion of entitlements through organizations like yours or ours. बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। उसमें कहीं से हमको डिफिडेंट नहीं होना चाहिए, एपोलोजेटिक होने की जरूरत एकदम नहीं है। And we are trying to do that. So let's meet again. Thank you. आप अपना नंबर भेज दीजिएगा आप हमको, सिद्धार्थ। Sure. Sudhakar ji, then Dr. Namaskar. Gupta, quickly. Yeah. I will take a little time. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. This is Sudhakar. I'm very, very impressed with the presentation, with the approach, and with the principles that were involved in making this beautiful transformation possible. Truly, from my heart, it's a heartwarming. It's music to my ears. Congratulations, Siddharth ji and the team. I will be happy to support you in any of these activities within my health and time limitations. But this is a subject close to my heart, and you employed some of the principles beautifully. I often say that India is a big country. The problems are big, so the solutions also have to be big. If the solutions have to be big, there are 2 methods. One is use technology very well, or the best knowledge practices very well. 2, use the entrepreneurial skills of people to solve their own problems, help them solve their own problems. You have done this superbly, because for entrepreneurs, problems are not problems, they are opportunities.
So you instigated that spirit in them. So congratulations. We'll be very happy to talk to you if you ever come to Bangalore. Thank you. Bye. Gupta ji, Anand Gupta. Followed by Nilabha Reddy. Sir is muted. Sir, you are muted. Yes. Dr. yes, Gupta, you are, हाँ. yes. सिद्धार्थ जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद गुप्ता है। मैं आन अहमदाबाद में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हूँ और आपकी बातें मेरे काफी सवाल हैं, लेकिन ज्यादा समय क्योंकि नहीं है, 3 ही सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक तो नरेगा के बारे में बताइए, नरेगा कितना पॉपुलर है, कितने लोग वहाँ नरेगा का फायदा उठाते हैं? सर मैं एक एक करके बोल दे रहा हूँ। सर मैं 6 साल तक नरेगा का कमिश्नर रहा हूँ राज्य में। ठीक है। तो नरेगा में सर लीकेजेज बहुत हैं, बहुत लीकेजेज हैं सर। और एक बार अगर किसी की आदत खराब हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे सिस्टम में सर। फिर भी मेरा ये मानना है कि कुछ तरीके ऐसे बनाए जा सकते हैं जिससे इस लीकेज पे कंट्रोल हो। हमने किया भी, जब तक हमको पॉलिटिकल और सिस्टम का सपोर्ट रहा सर, काफी बेहतर परिणाम मिले। हम अकेला राज्य झारखंड राज्य हम मुखिया को डिसमिस कर पाए सर। लेकिन जिन विलेजेस में आपने काम किया वहां तो सर नरेगा जो है वो मतलब अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का वो बन गया, क्योंकि वहां पे गलत नहीं हो पाया। तो जिन गांवों में कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाती है वहां नरेगा जैसी योजनाएं या 15 फाइनेंस कमीशन जैसी योजनाएं ये बिल्कुल सर मिरर की तरह स्पष्ट हो जाती हैं, वहां गलत नहीं हो पाता है। लेकिन बाकी गांवों में भी अगर थोड़ा सा सिस्टम को, जैसे सोशल ऑडिट यूनिट झारखंड की सर पूरे देश में जानी जाती है। अगर कभी अमरजीत सिन्हा सर से या आनंद सिन्हा सर से, जो अभी सेक्रेटरी स्टील हैं, अगर बात हो सर तो ही विल टेल कि हम लोगों ने क्या इनोवेशन किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी यूनिट को ही डिसबैंड कर दिया गया वंस आई वाज आउट। तो वहां के जो यंग मैन है, यंग यूथ है, वो भी नरेगा में जाते हैं सर। वो ऐसे नहीं जाएंगे जब उनको ये बताया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं सर नरेगा में। जी सर, यूथ भी जाएंगे जब उनको ये बताया जाएगा कि ये ग्रांट है। सर नरेगा में बहुत सारे इनोवेशन हो गए हैं। पहले नरेगा में इंडिविजुअल वर्क नहीं किया जा सकता था, ये 2015-16 में आया कि नरेगा में अभी इंडिविजुअल वर्क भी किए जा सकते हैं। तो सपोज सर मुझे 3 लाख का 4 लाख का कुआं बनाना है और मेरा अपना कुआं बन रहा है, तो ये तो मेरे लिए ग्रांट हो गया। तो अगर मैं जो काम कर रहा हूँ मजदूरी अगर कम भी है डेली वेजर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के 2 लोग 3 लोग काम करेंगे और मेरा अपना एसेट बन जाएगा। तो नरेगा सर नाउअडेज इज नो मोर द नरेगा ऑफ years. इट हैज बीन कंप्लीटली इनोवेटेड। और नरेगा से रूरल एरिया में बहुत सारे लाइवलीहुड एसेट्स बना करके लोगों के जीवन में बेहतरीन बदलाव किए जा सकते हैं। तो यूथ है एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं वो सर। एजुकेशन पे तो सर हम लोगों को अलग से चर्चा करनी चाहिए सर। एजुकेशन का जो हाल है, अगर हमारे पास डिग्री भी है तो कुछ नहीं है हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है सर। उसके पास दिलीप जी और लोग बोलना चाहते हैं, मेरा ख्याल है सबको थोड़ा समय दिया जाए। जी जी जी। नीलभ्रा जी क्विकली, फिर रीना जी वेरी क्विकली, देन प्रणव। सर मैं नीलाभ्रा आंटी हूँ, मैं एनसीजीजी में एक इंटर्न हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। टॉपिक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और बेसिक डोमेन है दिस रूरल ये के ऊपर ही। सो सर फर्स्टली आपने जो वर्क किया है रियली वेरी गुड वर्क। तो मेरा क्वेश्चन 3 है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ। आपने मेंशन किया था आप कुछ इनोवेटिव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक किए हैं, उसमें थोड़ा आप अगर लाइट दे। और एक और चीज मेंशन किए थे सर, एक चीज का मैं मानता हूँ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज द इकोनॉमी, वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, क्योंकि अगर थोड़ा पैसे आ जाए देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स, राइट। सो सर आपने एक एग्जाम्पल मेंशन किया था कि एक मजदूर के पास 2 इंच भी लैंड नहीं था, बट 1 साल 2 साल के अंदर उसने स्विफ्ट डिजायर गिफ्ट किया। सो हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, दिस वन। एंड थर्ड एक और चीज, आपका मॉडल जो है रियली वेरी गुड मॉडल है कि ग्राम को ही सेल्फ रिलायंट बना दे। तो सर हम लोग अगर ग्लोबल मॉडल्स को देखें बाहर क्या होता है, या इट इज डिफरेंट देन इंडिया, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि सब कुछ एक डिजिटल इकोनॉमी, एक डिजिटल इंक्लूसिविटी, डिजिटल ब्रिजेस बन रहे हैं। सो सर आपका ऐसा मॉडल में अगर इसको स्केल करना है तो डिजिटल का एक पार्ट आना ही है।
सो आप इसको एग्जैक्टली कौन सा एरिया में आप देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग डिजिटल ब्रिजेस बना सकते हैं जिसमें और ग्रो किए और डेवलप हुए? यही सर। नीलाभ, आपका बैकग्राउंड क्या है पढ़ाई का? मैं रिसेंटली एमएससी ज्योग्राफी पास किया हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल एंड अर्बन मैनेजमेंट। ओके नीलाभ, कुछ चीजें हम लोग सुनते सुनते हमारे दिमाग में आ जाता है और वो गलत होता है। जैसे आपने कहा ना कि इकोनॉमी जो है वो सुधरेगी तब बाकी चीजें सुधरेगी, नहीं, इकोनॉमी का सुधार आउटकम है। सबसे पहले हमारे वैल्यूज सुधरने चाहिए, संस्कार सुधरने चाहिए, और आपने देखा कि किस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे सभी दिशाओं में बेहतर कर पाया है। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत सारे लोगों से हमने सुना है पूरी जिंदगी, ये बिल्कुल गलत है, मिसनॉमर है। और अभी आप जब बोल रहे थे तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें IIT दिल्ली के 79 बैच के योगेश हैंडले जी, रेनाउंड एंटरप्रेन्योर और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के CEO वगैरह और तमाम चीज। अभी उन्होंने लिखा भी है जो चीज मैं बोला हूं, मैं देख रहा था कमेंट में उन्होंने लिखा है ना, ही लिव्स इन नोएडा। और दूसरा चीज है पानी पे जो आप समझना चाह रहे हैं उसके लिए आपको आना पड़ेगा जमीन पे। एक बार आप रांची आ जाए, मैं आपको घूम के दिखाऊंगा। आपको पता है हमारे गांव को हर वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नेशनल वाटर अवार्ड देती है और अगले 20 साल तक मिलता रहेगा हमारे गांव को अवार्ड। हर साल एक गांव को अवार्ड मिलता है क्योंकि हमारे गांव बन चुके हैं 20-22 और वो हर साल एक ही अवार्ड देते हैं। तो हमारा एक गांव को मैं हर साल भेजता हूं और वो अवार्ड हमको मिलता है। उनकी टीम आती है, देखती है, वैसा काम ही उनको कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने क्या कहा, आई एम ए सिविल इंजीनियर, आई हैव डिवाइज्ड दैट टेक्निक कि हमारे यहाँ कैसे अपलैंड में कितना स्लोप है, कितना रेनफॉल है, कितना टेक्सचर है सॉइल का, कौन सी तकनीक लगे। जब मैं काम कर रहा था तो जनरली वी सिविल इंजीनियर्स वर्क ऑन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि 90% सेफ्टी। हम फेल सेफ डिजाइन करने के आदी हैं। जितने भी इंजीनियर बैठे होंगे मेरी भाषा समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अगर इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ऑलमोस्ट आई एम अचीविंग 100%। मैंने वो चेंज किया और मुझे 100% मैं रन ऑफ को रोक पाया, 100% रन ऑफ को। यू कम एंड सी, हमने कहीं भी उनपे वहां पे पानी को बाहर जाने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है। और ऐसा सिस्टम है जिसमें जैसा मैंने बताया कि पर हेक्टेयर 1 करोड़ लीटर पानी हम जमीन के अंदर डालते हैं, 1 करोड़ लीटर। यू कम एंड सी, जिस गांव में ये काम होता है मात्र 100 दिन में गांव अपने आप को हमेशा के लिए झारखंड की टोपोग्राफी में, झारखंड के रेनफॉल में ड्राउट फ्री कर लेता है, ड्राउट फ्री। मैंने अपने मुख्यमंत्री को कहा कि 75 साल में हमारा राज्य अभी एक फसला है। सर आप कितने साल में समझते हैं कि इस राज्य को 3 फसला कर पाएंगे? नेचुरली ही कुडंट आंसर। मैं उनसे प्रश्न का जवाब भी नहीं पूछ रहा था एज ए डिग्निटरी, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया। मैंने कहा सर मैं 5 साल में आपके राज्य को 3 फसला कर सकता हूं विदाउट टेकिंग इवन ए पेनी। नरेगा में पूरा का पूरा वेज कंपोनेंट भारत सरकार देती है, हर गांव इसको कर सकता है, लेकिन तरीका बदलना होगा। उस तरीके को ही अपना करके हमने अपने गांव में किया है, हम कुछ और नहीं किए हैं। हमने सिर्फ तरीका बदल दिया है। अभी जो सिस्टम का तरीका है हमने थोड़ा इनोवेट किया, तरीका बदल दिया, काम होने लगा। तीसरा चीज जो आपने कहा टेक्नोलॉजी, ये ट्रेनिंग जो हो रही है, हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ मेंटर्स और अन्य लोग हमारे जुड़े हुए हैं। शायद गांव का मुखिया भी जुड़ा होगा 1-2 लोग, या गांव के प्रधान भी जुड़े होंगे जो ट्राइबल एरिया में होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो खुद बताएंगे। अब हम ट्रेनिंग ज्यादातर इस पे करते हैं, डेली रात को डिनर के बाद 8 बजे से लेकर के हमारी प्राइम मूवर या मेंटर्स के साथ बात होती है, वो रात को 1-1 बजे तक चलती है। तो कोविड के बाद इस टेक्नोलॉजी ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा आसान कर दिया है। थैंक यू। रीना जी, आपका सवाल कोई है क्विकली? यस। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। अभी तक के जितने प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने ICCFG ग्रुप में देखे हैं, इसमें सबसे बढ़िया, फर्स्ट क्लास, यू आर ए सेल्फ ड्रिवन पर्सन। आप खुद जो काम आप करते हैं और उसमें जो आपको इम्पैक्ट आता है, आउटकम आता है, उससे आपका मोटिवेशन और बढ़ता है। और ये सवाल मेरा केवल इतना है, एक सवाल तो मैं पानी पे पूछना था, वो हो गया। दूसरा था एजुकेशन पे, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको काम करने में आनंद आता है, जिनको नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने में खुशी होती है, उसका जो इम्पैक्ट आता है उसको देख करके आप और मोटिवेट होते हैं। अगर ऐसे वैल्यूज बच्चों पे इनकलकेट हो पाए, जब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, वो हर जगह, चाहे वो गांव हो या शहर हो, उस लेवल से अगर शुरू हुए तो इसका इम्पैक्ट ऊपर तक जाएगा। क्योंकि अभी तो ऐसे आपके जैसे कुछ लोग होंगे जो इस चीजों को कर पा रहे हैं, बहुत ही कम। लेकिन अगर ये सिस्टम में आपको इम्प्रूव, बदलाव लाना है, इकोनॉमी में कुछ भी आना है, ये लोगों से ही होता है किसी भी देश में। और दूसरी जो कॉमन चीज आपके साथ मैंने इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं किया, मैं इंडस्ट्री से हूँ,
लेकिन हमारे दोनों में एक कॉमन बात है कि आपने 30 साल से दवाई नहीं खाई और मैंने 40 साल से दवाई नहीं खाई कोई भी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, केवल मैं एजुकेशन के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ बस। मैम एजुकेशन पे बेसिकली मैं अपने आप को एक टीचर ही मानता हूँ मैम, रिसर्चर एंड टीचर। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आज मैं नौकरी कर रहा हूँ एक चेयर पे, लेकिन बेसिकली दैट इज व्हाट आई डू। आई वर्क विद पीपल, आई फाइंड सम सॉल्यूशन एंड देन आई ट्राई टू स्केल अप। तो आज के दिन में मैम शिक्षा पे जो मेरा प्रयोग हो रहा है, आप जो बता रही हैं बिल्कुल सही है, दैट इज द लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म भी इतना लॉन्ग टर्म नहीं, 15 साल अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में पूरे तौर पे काम कर दे तो पूरा गांव ही बदल जाएगा। और आज के दिन मैम मैंने शुरू में ही कहा कि मैं जिस गांव में काम कर रहा हूँ वहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक अलग सिलेबस है मैम। हम स्कूल की औपचारिक जो सिलेबस है उसको औपचारिक शिक्षा, हमने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा है। संस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। तो जो आज गणित, विज्ञान, भाषा और समाज विज्ञान पढ़ाया जाता है वो औपचारिक शिक्षा है। सबसे पहले मेरा फोकस संस्कार शिक्षा पे होता है। हमारे बच्चे 4:30 बजे उठते हैं। गांव के लोगों ने अपना हॉस्टल बनाया है मैम, अपने टीचर रखे हैं। अगर गांव के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ जाएगी तो पैसे का क्या करेंगे? अगर उनका दिमाग सही रहेगा तो शराब में नहीं जाएगा, वो व्यभिचार में नहीं जाएगा, वो पैसा उनके बच्चों के बेहतर कैरियर में जाएगा। तो वो गांव में बिना किसी सरकारी मदद के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, सरकारी विद्यालय के बगल में जो कम्युनिटी हॉल था उसको हॉस्टल बना दिया। वहाँ 30 बच्चे उनके रहते हैं और वहाँ 3 टीचर रात दिन रहते हैं और उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और मैम अभी ये प्रयोग मैंने जस्ट अभी जून में शुरू किया है, पिछले जून में। अच्छा, आप देखने लायक है, योगेश सर जुड़े हुए हैं उस प्रयास से। हमारे बच्चों को इंग्लिश हेल्पर से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। वो एक ऐसा खूबसूरत मॉडल है कि मतलब उसमें कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए वो भी वो सीख रहे हैं। हम संस्कृत के टीचर हैं, भाषा हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। और इस सभी जो बच्चों के साथ काम हो रहा है, सुबह 4:30 बजे से लेकर के बच्चों के 8 बजे सोने तक, ये जिस तरह से काम हो रहा है, मेरा विश्वास है कि ये 10 साल के बाद ये गाँव फिर ये फॉल बैक नहीं करेगा। अभी क्या होता है, हम गांव में जाते हैं तो कोई बूढ़ा आदमी जाकर के हार्ट से पी के आ गया तो गांव वाले शिकायत करते हैं, सर बूढ़ा है, इसको क्या कुछ बोलें, पिटाई भी नहीं हो सकती, डांटा भी नहीं जा सकता क्योंकि गांव का दादा है, तो क्या करें। तो मुझे कभी कभी मन में आता है कि मैं क्यों नहीं ये काम करता हूँ। तो शायद बचपन में जो संस्कार बन जाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरू के 9 साल में ही 90% संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। वो अगर वैल्यू सिस्टम शुरू में बचपन में ही आ जाए तो शायद वो बाद में खराब नहीं होगा। और ये मैं अपने बच्चों के अंदर देख रहा हूँ। ट्राइबल बच्चे जो हिंदी तक नहीं बोल पाते थे मैम, आप हमारे यहाँ का शिक्षक दिवस का कार्यक्रम देखें, ऐसा लगेगा कि डीपीएस और ऋषि वैली का कार्यक्रम है। यू वोंट इमेजिन। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा विद्यालय अगले 2-3 महीने में इस राज्य का बेहतरीन विद्यालय, नंबर 1 विद्यालय होगा, नंबर 1। जी, धन्यवाद। विदिन अ ईयर। बहुत we have overshot our time. प्रभात जी, अगर आप परमिशन दे तो 1-2 जो हाथ दिखाए उनको भी बात कर सर प्लीज। मेरा नाम मोना डालमी, मैं प्लीज कुछ कहना भी चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ। बहुत जल्दी बोलूंगी मैं। सर नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। माय नेम इज मोना डालमिया, मैं एक एजुकेटर हूँ। हमने हमारा यहाँ पे स्कूल फाउंड किया है सुसपानेर गाँव में। हमारा स्कूल एकदम नेचुरल तरीका है। 2-3 चीजें मैं पिक करना चाहती हूँ। पहले आपने अभी जैसे त्रिपाठी सर ने कहा कि वो विलेजेस में सामाजिक एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं काफी, तो विलेजेस में आप दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है सर। पर हमारे अर्बन स्कूल्स में ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंटली आना चाहिए, नहीं तो ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स हो ही नहीं सकते। आज आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो यंगर जनरेशन है, दे टोटली removed from all of this wonderful work. They don't even know about all of this work. तो मेरा क्वेश्चन, सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि एज अ स्कूल अगर हम चाहें कि हम किसी एक विलेज को अडॉप्ट करें ये एक पूर्ण तरीके से काम करने के लिए, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है सर? सेकेंडली, क्या एक ही विलेज के साथ काम करना सही है क्या एज अ स्कूल? मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनफैक्ट मैं भी जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ और मेरे बच्चे भी जिस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, वहां पे भी मैम वैल्यूज नहीं बताई जा रही है। जब आप बच्चे हैं तो आपके मार्क्स कितने आए, और गलती से अगर आप IIT, IIM, एम्स या कहीं पे भी NIT चले गए तो आपको कितने का पैकेज मिला। तो जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बचपन में मार्क्स और कैंपस के पैकेज के बीच में झूल रही हो, वो भूल जाए हम विश्वगुरु और क्या कह सकते हैं। नहीं सर, वो ठीक है, अभी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अब हर तरह, परंतु एटलीस्ट हम सोच सकते हैं ना, हम भी तो सोच रहे हैं। तो आप जो वैल्यू एजुकेशन कह रहे हैं, मुझे लगता है वैल्यू एजुकेशन से ज्यादा
इम्पोर्टेंट है समाज के लिए काम करना, बिकॉज जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो वैल्यू एजुकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैम ये सही है, संस्कार नहीं होगा तो हम समाज के पास भी नहीं जा पाएंगे मैम। तो संस्कार, हाँ, मेरी दोनों ही समझ ये चीजें कहती है कि पहले जी सर। संस्कार पे काम करें, संस्कार पे काम हो तो समाज शिक्षा पे काम करें। समाज जी शिक्षा सर। क्या है? समाज शिक्षा है क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, हेल्थ का इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशन की समझ, एग्रीकल्चर की समझ, ये तमाम चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और हमारे साथ जुड़े कौन है मैम इस सिलेबस को तैयार करने में? 87 ईयर ओल्ड थर्ड सीनियर मोस्ट मांग ऑफ आरके मिशन स्वामी शशांकानंद जी। इस कोविड में वो इस समय उनको बेलूर मठ में रहना चाहिए। ही हैज टेकन स्पेशल परमिशन टू लिव विद मी। ही लिव्स इन रांची विद मी। Occasionally he goes to Bokaro and we have prepared a syllabus कि इस देश के स्कूलों का सिलेबस कैसा होना चाहिए और हम उस सिलेबस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम 2-4 विद्यालयों में काम कर रहे हैं, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि वी आर डूइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर इंडिया। Thank you so much. I think we have satisfied everybody's questions. There was one Pranav Kumar, but now I don't see him on the screen. So Prabhat ji, to you sir for closing remarks. अब दिलीप, अब मैं समझता हूं कि मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन आज से 2 महीने पहले जब मैं रांची गया था और एक स्किपा जो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कार्यक्रम था कि किस तरह हम अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने में मदद करें, तो उस समय मुझको एक पार्टिसिपेंट ने ये बताया कि झारखंड में भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और एक फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं। मैंने वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर मीना उनका नाम था शायद, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर ये अधिकारी हैं और हम इनसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी जिसमें सिद्धार्थ त्रिपाठी जी को बुलाया और मैंने इनके साथ करीब आधा घंटा बात की, क्योंकि मैं फ्लाइट कैच करने वाला था इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। लेकिन वो आधा घंटा जो था वो ट्रांसफॉर्मेटिव था। जो इन्होंने बातें बताई, इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी दैट ही टोल्ड अस, and that is why I decided that his story should be heard by more and more people, particularly those who are concerned with civil service. And that is why we have organized this webinar. Thank you very much, Siddharth. Thank you very much. And I must say that yours is a magical story, and I mean, people should be inspired by it. I don't know how it is to be done. I think I'll come back to you and we'll discuss this. In fact, I want to discuss it with Sudhakar ji also and Amod and some others who are here, like Jayashree is here. Jayashree Rao from IFC. She's also here, and she has done wonderful work in some of the Sahyadri villages. Anyway, right. So I want to get in touch with such transformative individuals, such people who have worked magic in their own areas. And I want to learn from them, how is it possible to transfer the passion they have to others? You know, this passion which you have, I don't think that 99% of the civil servants share this passion with you. So the question is, how can this passion be replicated? And if it cannot be replicated, at least to some extent, the spirit of service can be inculcated in the civil servants right from the top to the bottom. Now, this is something which we started to do in the Aichi Center for Governance some time back, but we didn't succeed, and I don't have any answers. So I would like to work with you. If it is possible, Siddharth, to spare some of your time, Pleasure, sir. Sudhakar ji, if you can also guide us in this. We want your guidance, because this is one of the efforts that we are trying to make in the IC Center. For the last 20 years, we have been working mainly, the focus is on ethics in governance. How can we bring more and more ethics in our civil servants, in our politicians too? But this is something. But I found very interesting that, you know, we got more from the answers you gave to the questions. Your presentation was excellent, but the answers you gave, I think, you know, they are
extraordinary. And I must say, in fact, Dilip ji, I would request you that we must have Siddharth in all our training programs whenever it is possible for him. Yes, sir. Even online, and if he can come in person, nothing like it. So thank you very much, Siddharth. Thank you very much, and we will be in touch with you. I have one request, that in the audience we have some very eminent people and very very dedicated individuals, and I want that IC Center should be in touch with them. So I'll request all of them, including Mona ji, who has gone away now, to let us know their contact numbers, their email IDs, so that we can be in touch with them. And thank you, Dilip. Thank you, Dilip, for organizing this beautiful session. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you so much, sir. It's all Thank you, everyone. inspiration from you. Thank you very much, sir. Thank you, Siddharth ji. Thank you. Thank you so much. Pranam. Pranam. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.